Good morning, students. I hope all have watched the video. In the video, I have explained you the hard words of chapter number 3 of your English reader book. And the name of the chapter is Tine and the Far Away Mountain. Okay? As we have read and learn also the hard words, now we are starting the chapter. Before starting the chapter, I just want to tell you about the writer of this chapter. The writer of this chapter is Shikha Tripathi. Shikha Tripathi, she is the writer of this chapter. Shikha Tripathi, she is a traveler writer, means she writes on the travelers. She just meet the travelers and just exchange their experience, ask their experience, and the same she writes in her writing. In this chapter, we are going to read about this girl. The girl name is Tine. She is a young girl, and Shikha Tripathi just meet to her also, and she has shared her experience in this chapter. So now we are going to start the chapter, and as I told you, the writer of the chapter is Shikha Tripathi. Okay, let's start the chapter now. Tine. Tine here is the name of a girl. Yes, Tine and the Far Away Mountain. Tine is the name of a girl. Far Away Mountain means mountain is here. Far away means far away, dur. Okay? Yes. Read and listen the chapter properly, and just concentrate only on the video, not to see here and there. Concentrate on the chapter. In Ikeli, in the Mishmi Hills of Arunachal Pradesh, young Tine Meena heard a wondrous call from the mountains in the distance. Yes. What we have read? The first line. In Ikeli. Ikeli is a place in the Mishmi Hills of AP. AP means Arunachal Pradesh. Here a young girl was living, and her name was Tine Meena. And she always heard a wondrous call. Wondrous call means a wonderful voice, a magical voice from the mountains in the distance. She was drawn to it, a sound only she could hear. Yes. Yes, what's the second line? She was drawn to it, a sound only she could hear. Drawn to it here means very interesting. And that voice, it was very interesting for her, and that voice only she can hear. Which voice? The voice of the mountain. Yes. In Ikeli, the Mishmi Hills, Ikeli in Mishmi Hills, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे एक यंग गर्ल रहती थी. हर नेम वॉज टीने मीना. उसे माउंटेन से, दूर से, डिस्टेंस से एक बहुत ही वंडरफुल वॉइस हमेशा सुनाई देती थी, और वो वॉइस सिर्फ उसी को सुनाई देती थी, और उसको वो वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट. शी हर्ड इट while she climbed trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. Whoosh-hoo, the sound went whoosh-hoo. Yes, she heard it while she climbed trees. उसको वो वॉइस कब सुनाई देती थी? चाहे वो ट्रीज पर क्लाइम कर रही हो. Here she lives in the Mishmi Hills, Ikeli means it's a village. Mishmi Hills
पहाड़ियों से घिरा हुआ एक विलेज है एंड द नेम इज़ इकली। वैन एवर शी क्लाइम द ट्रीज़, अगर वो ट्रीज़ पे क्लाइम कर रही है। शी रैन थ्रू द जंगल, वो जंगल में दौड़ रही है, घूम रही है। शी हर्ड इट वैन शी स्पेंड लॉन्ग डेज लाइंग अंडर द सन, या फिर वो सन के या सूरज के नीचे लेटी हुई है, सूरज को देख रही है। उसको हर समय वो वॉइस सुनाई देती थी, एक आवाज़ सुनती थी, एक कॉल सुनती थी। कहाँ से? माउंटेन से। और वो वॉइस कैसी सुनती थी उसको? वूशू वूशू। ओके, उसे लगता था कि वो जो बहुत दूर एक माउंटेन है वो उसे पुकार रहा है। कौन सी आवाज़ से? वूशू। आह, टीने वुड स्माइल, वॉट अ वंडरफुल लाइफ। एंड टीने वॉज सो हैप्पी, वो अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी थी। शी वॉज थिंकिंग डैट व्हाट्स अ वंडरफुल लाइफ, कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। माउंटेन्स जो हैं उनकी आवाज़ मुझे सुनती हैं, मैं नेचर के पास रहती हूँ, क्लाइंबिंग द ट्रीज, मूविंग टू द जंगल, दिस ऑल थिंग्स शी लव अ लॉट। नेक्स्ट, यस, ऑल आर अंडरस्टैंडिंग? आई हैव एक्सप्लेन टिल हियर, मैम ने यहाँ तक पढ़ा दिया है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? yes, okay, see the video only, then you will understand. You have to focus and concentrate on the chapter. Next line. But one day her family moved out of Ikeli to the closest big town, Roing. But one day, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी जो फैमिली है, they shifted to the big town. उसकी फैमिली, किसकी फैमिली? ऑफ दैट गर्ल, टीने। टीने की फैमिली एक बड़े टाउन में शिफ्ट हो गई। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन? रोइंग। वेयर दे शिफ्टेड? दे शिफ्टेड टू रोइंग फ्रॉम द इकेली। टीनेज वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? टीनेज वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन मीन्स her life completely changed. She was so upset. Why she was upset? वो upset क्यों थी? Because she loves Ikeli. She loves to climbing the trees. She loves to run through the jungle, spending a long time with the nature and natural resources. She loved it. But now her life was changed and she was not so happy. उसकी जो फैमिली थी वो इकेली से रोइंग शिफ्ट हो गई, एक टाउन में शिफ्ट हो गई। उनकी फैमिली चली गई और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रोइंग चली गई, जिसकी वजह से वो हैप्पी नहीं थी। शी वॉज अपसेट। देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग बट द वूशू हैड बीन लाउडर इन इकेली। देयर वॉज अ स्कूल इन रोइंग बट द वूशू हैड बीन लाउडर इन इकेली। हियर वॉज अ स्कूल, बट जो वूशू की आवाज़ थी वो इकेली में ज़्यादा तेज़ आती थी। वो वहाँ माउंटेन्स को सुन पाती थी जो यहाँ पे वो नहीं कर पा रही है। टीने वांटेड टू रिटर्न टू हर माउंटेन्स अगेन। वो वापस अपने माउंटेन्स के पास जाना चाहती थी। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट। सो शी ट्रस्ट टू स्कूल एवरी डे for 10 years, glancing wistfully at the mountains in the horizon. Understand? I am repeating the sentence again. So she trudged to school every day. As she was upset, उसे mountains पसंद थे, अब वो mountains के पास नहीं जा पा रही थी, उनको नहीं सुन पा रही थी. Now she was going daily to the school. But how she was going? She trudged. Trudged means here with the slow and heavy steps. कोई भी ऐसा काम जो हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो हम कैसे चलते हैं? बहुत ही स्लो स्टेप्स लेते हैं. वो स्लो स्टेप्स के साथ उसने 10 ईयर्स निकाल दिए. मीन्स उसने 10 ईयर्स तक स्कूलिंग करी, बट वो डेली किनको देखती थी? ग्लैंसिंग विस्टफुली. वो दूर दूर जो पहाड़ियाँ थी उनको देखती थी और उनको अभी भी उसको वो माउंटेन्स अभी भी याद आते थे और उसे लगता था कि वो माउंटेन्स उससे दूर हो गए हैं. When she finally finished her schooling, Tina immediately applied to be a porter for army expedition in the mountains. As soon as she finished her schooling, जैसे ही उसकी स्कूलिंग फिनिश हुई, ऐसे completed her schooling,
शी इमीडिएटली अप्लाइड, उसने अप्लाई किया किसके लिए? एज अ पॉटर। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉटर? पॉटर मीन्स अ पर्सन हु कैरी अ लगेज, वो इंसान जो बहुत सारा लगेज उठाकर इधर से उधर जाता है। इन हिंदी वी से कुली, दैट यू कैन सी इन रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप। उसने अप्लाई किया पॉटर बनने के लिए, किस लिए? फॉर आर्मी एक्सपीडिशन। आर्मी जो होते हैं वो जर्नी जो उनकी होती है एक पर्पस से होती है, फॉर द माउंटेन, उनके लिए उसने पॉटर बनने के लिए अप्लाई किया, क्योंकि वो आर्मी एक्सपीडिशन कहाँ हो रहा था? फॉर द माउंटेन्स। शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंस as she want to be a potter now. Or what was the job of the potter? Potter has to carry heavy load for a long distance. Potter का काम क्या है? Heavy load को carry करना है, कहाँ तक? For the long distance. But women were not allowed to be potter in those days. But just read it carefully. But women were not allowed to be potters in those days. लेकिन उस समय फीमेल को, गर्ल्स को या कहें वीमेन को अलाउ नहीं था. इट वॉज अ बैन. अलाउ नहीं था. क्या अलाउ नहीं था? पॉटर बनना. मीन्स उस टाइम गर्ल्स पॉटर नहीं बन सकती थी. ये जॉब सिर्फ बॉयज़ के लिए था. टीने डिड नॉट लेट दैट स्टॉप हर. लेकिन टीने को इस चीज़ ने नहीं रोका कि मैं गर्ल हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती. शी ड्रेस्ड एज अ बॉय एंड स्टार्टेड टू वर्क कैरिंग नियरली 25 kilos ऑफ लगेज एवरी डे. शी इज़ ड्रेस्ड एज अ बॉय. उसने बॉय की तरह ड्रेसिंग की अपनी और उसने काम करना शुरू कर दिया. और वो लगभग 25 किलो वेट लगेज डेली अपने बैक पे, मीन्स इतना किलो वेट मतलब इतना भारी लगेज लेके वो डेली क्या होता था? आर्मी एक्सपेडिशन में वो माउंटेन पर जाती थी. अ होल वीक पास्ड बिफोर एवरीवन रियलाइज्ड दैट शी वॉज अ गर्ल डिस्गाइज्ड एज अ बॉय. बट एक वीक के गुजरते गुजरते, मतलब उससे पॉटर बने लगभग 1 वीक हो गया था, तभी सबको मालूम पड़ गया, सभी ने उसको पहचान लिया that she was a girl disguised as a boy, कि ये लड़की है जो कि एक लड़के के भेष में, disguised means भेष बदलना, disguised means भेष बदलना, कि ये जो बॉय है एक्चुअल में शी इज़ नॉट अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल. ये बॉय नहीं है, ये लड़कों के भेष में एक लड़की है. अंडरस्टैंड? टुडे वी विल रीड till here only. Then tomorrow we will start the next page. I hope all of you understand till here. And hard words, as I explained on the board, you have to do that work in your copy. Understand, students? That work you have to do in your copy and you have to learn also. Because she has broke the rule. Which rule? That female were not allowed as a potter. But they knew that Tine knew the route better than anyone else. So they allowed her to continue working. Her act would later help lift the ban on female potters. Yes, when army expedition was going on, they realized, वो पहचान गए कि ये कोई बॉय नहीं है, ये कोई गर्ल है जिसने क्या कर रखा है? एज ए बॉय डिस्गाइज कर रखा है. जब ऑफिसर्स को पता लगा तो ऑफिसर्स ने क्या करा? ऑफिसर्स स्कॉल्डेड मीन्स डांटना. किसको डांटा? टीने को. वाई? फॉर ब्रेकिंग द रूल्स उसने ब्रेक किए थे तो ऑफिसर्स ने उसको डांटा. लेकिन वो ऑफिसर्स ये भी जानते थे कि हमसे भी ज़्यादा अच्छे से रूट कौन जानता है? माउंटेन का जो रूट है वो कौन जानता है? टीने. इसलिए उन्होंने उसको जॉब से नहीं निकाला और उसको कंटिन्यू वर्क करने के लिए कहा. और यही जो पॉइंट था, इसी ने लास्ट में क्या करा? फीमेल पॉटर पे से बैन हटा. किस वजह से? टीने की वजह से. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द आर्मी टीने वर्कड ऑन मैनी एक्सपीडिशन एंड सून बिकेम अ कोऑर्डिनेटर.
Yes, when she has joined as a porter in the army, she worked on many expeditions and soon became, और जल्द ही वो क्या बन गई, coordinator. And what is the meaning of coordinator here? Coordinator means someone who plan trips to the mountain. वो माउंटेन की ट्रिप्स को प्लान करने लग गई, वो अब कोऑर्डिनेटर बन चुकी थी. It was on one of her expedition as a coordinator that she met Dr. Romeo Mati. Yes. अब वो कोऑर्डिनेटर का जॉब कर रही थी एज ए कोऑर्डिनेटर. वो एक एक्सपीडिशन कर रही थी. एक्सपीडिशन मीन्स एक और ट्रिप जा रही थी. उस ट्रिप में जब वो एज ए कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रही थी, वो जॉब कर रही थी कोऑर्डिनेटर की, उसी टाइम शी मैट, वो किससे मिली, डॉक्टर रोमियो मैटी. वो डॉक्टर मैटी से मिली. At that time, Dr. Mehti was working to promote adventure sports in Arunachal Pradesh. At that time, उस टाइम डॉक्टर मैटी क्या कर रहे थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स को क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे. एडवेंचर स्पोर्ट्स मीन्स लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, these all are known as adventure sports in Arunachal Pradesh. And immediately identified teenage talent. और जल्द ही उन्हें टीने का जो टैलेंट है वो पता लग गया. कौन सा टैलेंट? You are a naturally gifted climber, he told her. You have the strength and the determination. Now all you need is technique. What डॉक्टर मैटी सेड, डॉक्टर मैटी ने क्या बोला टीने से, यू आर अ नेचुरल गिफ्टेड क्लाइंबर. मीन्स यू नो एवरीथिंग अबाउट द क्लाइंबिंग एंड माउंटेन. यू आर नेचुरली गिफ्टेड, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है इसके बारे में. और ये जो चीज़ें हैं बिना ट्रेनिंग के तुम्हें इतना मालूम है क्लाइंबिंग के बारे में. यू हैव द स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. और साथ में क्या है, तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी दिखाई देती है. नाउ ऑल यू नीड इज़ टेक्निक. सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है तो किसकी, टेक्निक सीखने की. किस चीज़ की टेक्निक सीखने की, ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन. अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टिल हियर. यहाँ तक सभी को समझ आया है? कंसंट्रेट ऑन द वीडियो एंड लिसन द वीडियो एंड माई वॉइस प्रॉपरली एंड अटेंटिवली. आपका पूरा ध्यान मैम जो वीडियो में आपको समझा रही है पूरा वहीं पर ही होना चाहिए. नॉट टू सी हियर एंड देयर, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर. नाउ द नेक्स्ट, डॉक्टर मेटी बिकेम teenage mentor and she began her training as a mountain climber. The distant mountains still called her. Yes. Now what Dr. Mehti was doing? Now Dr. Mehti was teenage mentor. And mentor means, I told you, mentor means a person who teaches you, who advises you regularly. Okay? Yeah, that is known as the mentor. And what is the work of the mentor? And what Dr. Mehti was doing? Dr. Mehti was training her as a mountain climber. The distant mountain still called her. Distant mountain, which is the distant mountain? वही माउंटेन जो वो बचपन से देखती आ रही थी, बहुत दूर एक माउंटेन, उसको आज भी उस माउंटेन की आवाज़ सुनती थी कि वह माउंटेन उसको बुला रहा है. वो माउंटेन कौन सा था? But Tine did not know the name of distant mountains till she watched the race for Everest, a film about the first climb of Mount Everest. टीने को अभी तक नहीं मालूम था कि वो जो बहुत दूर माउंटेन है जहाँ से उसको आवाज़ सुनाई देती है वूशू वूशू, उसे लगता है ये माउंटेन उसको बुलाता है, पुकारता है. वो माउंटेन है कौन सा? उस माउंटेन का नेम उसे तब मालूम पड़ा जब उसने एक मूवी देखी. शी वॉज द फिल्म. और फिल्म का नाम क्या था? व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फिल्म? द नेम ऑफ द फिल्म वॉज द रेस फॉर एवरेस्ट. दिस इज द नेम ऑफ द फिल्म. When she watched this film, then she came to know
That mountain name is Mount Everest. Wushu became a roar now and climbing Mount Everest became her dream. वूशू की जो आवाज़ उसे बचपन से सुनाई दे रही थी, अब वो क्या बन गई थी? रोर बन गई थी। ये एक तरह से दहाड़ बन गई थी उसके लिए, और माउंट एवरेस्ट पर जाना उसका बिकम्स हर ड्रीम, उसका ड्रीम सपना बन चुका था। आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन टीने फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल। बहुत सारे मंथ्स मीन्स महीनों की प्रिपरेशन, तैयारी के बाद, टेक्निक सीखने के बाद फाइनली टीने कहाँ पहुँच गई? माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, वेयर इट इज़ इन द नेपाल, शी रीच देयर। It was bitterly cold and the air was thin. It was bitterly cold. वहाँ कैसी ठंड थी? बहुत ज़्यादा ठंड थी। Tina trained there for a few days to get accustomed to the harsh weather and then began her climb. It was bitterly cold and the air was thin. Tina trained, जो ये बेस कैंप था वहाँ पे टीने को कुछ दिन रहना पड़ा ताकि शी बिकम द अकस्टम मीन्स यूज टू, फैमिलियर हो जाए वो वहाँ के हार्श वेदर से, बिटर कोल्ड से, एंड देन बिगेन हर क्लाइंब, और उसके बाद अपनी क्लाइंब की शुरुआत करें। द क्लाइंब वॉज डिफ़िकल्ट, क्लाइंब इतना आसान नहीं था। दिस इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, तो इसकी क्लाइंबिंग इतनी भी आसान नहीं थी। द क्लाइंब वॉज डिफ़िकल्ट, क्लाइंब कैसी थी? कठिनाई भरी थी।